we work on is for machine learning projects. As you can see here, our approach is collecting data on the go, which means our projects are very fast paced. Like things can change, guidelines can change. You have to work on a daily basis. You have to achieve targets. There are going to be a lot of meetings and everything just to ensure that the project remains streamlined or the whole process remains smooth. Now, let's formally begin with the project. The project is OCR. What is OCR? OCR means optical character recognition, means that if you are given an image, you have to find out which parts of the image have text. You have to select the text and you have to write it down. It's very simple. For example, let's say this is the picture that I got for my OCR work. What I will do is I'll see, okay, this is the first text, that is DN. The second text is data nomad, third text, fourth text, fifth text, sixth text, so and so forth. Basically, you're just scanning the picture to see wherever there is text written on the picture, you have to select it and you have to just type it on the company platform. The work is very simple. You can do it with any language, because almost every language, especially the three languages that we have, is Spanish, Italian as English, right? If I search for Italian, so for Italian alphabets, I can see that the capital letters are same. The small letters are also the same. So I don't need to change anything. Here we have Portuguese. Let's see for Portuguese. Okay. Yeah. So for Portuguese, from A to Z, the characters are same. The additional alphabets that we have is this A, E, I, O, U, and two other A's, E's, O, A, O, C. So these are basically the different characters, but still you can read them, you can understand, okay, this is how it's gonna go. Okay, just give me 1 second. Okay, guys, how many of you don't understand English? Please raise your hand. Anyone else who doesn't understand English? Okay, 2. Anyone else? 3. Okay, 4, 5. Okay, okay guys, थोड़ा सा आप लोगों को मैं साथ उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेसिकली काम बहुत सिंपल है. आप लोगों को इमेजेस दी जाती हैं जिनमें से आपने टेक्स्ट उठाना होता है और उसको टाइप कर लेना होता है. यानी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट पे बॉक्स बनाते हैं और उसको टाइप कर देते हैं. ठीक है, काम बहुत सिंपल है. और जो काम है वो 3 लैंग्वेजेस में है, पोर्चुगीज, स्पेनिश और इटालियन. ठीक है, अब इन तीनों लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. जो फर्क है वो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से देख सकते हैं लैंग्वेज इंस्टॉल करके. लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल होती है, आप यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज सेटिंग. ये आपको लैंग्वेज सेटिंग में आपको ये शो होगा. ठीक है, आपने किया ऐड अ लैंग्वेज और यहाँ पे लेट्स से मुझे पोर्चुगीज चाहिए, तो मैं पोर्चुगीज लिखूंगा. मेरे पास ये आ गई है. ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट.
ये चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे लैंग्वेज पैक चाहिए, तो इंस्टॉल लैंग्वेज पैक करके इंस्टॉल कर दिया, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं देख कैसे सकता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ लिखा है, तो मैं सर्च करूंगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको इस तरह से शो होता है। ठीक है, जब आप लैंग्वेज अपनी चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करने के लिए ये दो बटन्स हैं, ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है, जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपकी लैंग्वेज कीबोर्ड की चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको लैंग्वेज चेंज करने का तरीका बता देता हूँ, बल्कि लैंग्वेज चेंज करके दिखा देता हूँ कि हाउ इट्स चेंज्ड। You go to language setting, you click on add a language, you search the language that you want to add, you click on install language pack, and you install it. Once you install, let it load. And once it is loaded, you can change it and your characters will appear on this on-screen keyboard. Now, let's get to the platform first. Okay, so this is a platform. Platform is very simple. It is shujiajaya.com. We will provide you the link of this platform as well. Don't worry about it. आप लोगों को प्लेटफॉर्म का लिंक दिया जाएगा ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। इसको लॉगिन कैसे करना है? टू लॉग इन यू हैव टू क्लिक दिस ऑरेंज बटन। इस ऑरेंज बटन पे आप क्लिक करते हैं, ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है। जब आप लॉगिन पेज पे पहुंचेंगे तो आपने एंटर करना है अपना अकाउंट नेम और आपने एंटर करना है अकाउंट का पासवर्ड। और यहाँ पे आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन शो होगा जो आपने सॉल्व करना है। ओके, सो यू एंटर योर अकाउंट नेम, यू एंटर द पासवर्ड एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस मैथ क्वेश्चन। 7 - 1 is 6। आप लॉगिन पे क्लिक करें और इस तरह से आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। अब ये एरर मुझे क्या दे रहा है कि आपका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी कहीं और पे किसी और जगह लॉग्ड इन है। ठीक है, अगर मैं इसको ओके करता हूं तो दूसरा बंदा जो लॉग्ड इन है उसकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। इफ आई क्लिक दिस बटन वेयर एवर दिस आईडी इज लॉग्ड इन, his progress will be lost because his ID will be logged out. Okay, so I hope Hina you were not doing any work, or if you were doing, I hope you have saved it because I'm going to log you out. तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉग इन करने के लिए। अभी क्योंकि सिर्फ हम आईडीज टेस्ट कर रहे थे इसलिए दूसरी जगह पे लॉग्ड इन है। आप सबको अपनी सेपरेट आईडी मिलेगी। ठीक है, अकाउंट्स किसी के भी मिक्स नहीं होंगे। यू ऑल विल बी गेटिंग योर ओन separate account. Now, once you are logged into the home page of the platform, all you have to do is click here on your ID. आपने यहाँ क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। Everyone can see the screen, right? So click on the first option, that is my task. And TZ. Okay, one person is unable to hear the voice. Let me show you how to join the voice. Okay, so once you click on join audio, you can join your voice, okay? Okay, and you can translate the page to your desired language as well. Just right click, wait. Okay, meantime, let me show you how to change the language. Let's see if it is downloaded. Yes, it is downloaded. Language आपकी download हो गई है। इसको change कैसे करना है? आपने बटन प्रेस करना है Alt और Shift। जब मैं Alt और Shift प्रेस करता हूँ मेरे पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि मैंने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी। दोबारा Shift अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही है, या मैं डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूँ इस पे कि
तो आपका कीबोर्ड अब चेंज हो गया, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। Okay, let it load. Just give it a few seconds. Meantime, let's open the guidelines. Just give me 1 second. Okay, Hina or Rabia, can you please send me the link to the guidelines? Okay. आपने उसको डिटेक्ट करके देखना है लैंग्वेज को, कि क्या इज इट द सेम लैंग्वेज, इज इट द टारगेट लैंग्वेज और नॉट। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई, हो सकता है उर्दू की पिक्चर आ जाए, या हो सकता है आपको कोई इंग्लिश की पिक्चर आ जाए और आप उसको पोर्चुगीज समझ के पूरे को लिखते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देर आर फ्यू रूल्स ऑन दिस डॉक्यूमेंट। व्हाट आर द रूल्स? Frames are drawn line by line and cross line is not allowed. And frames are not necessarily overlapped except for special formulas, for example, this. Okay, so line by line means अगर आपको दो लाइनों में टेक्स्ट शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सात लाइनों में मुझे टेक्स्ट शो हो रहा है, तो इसमें मैं बॉक्स इस तरह नहीं बना सकता कि मैं इस तरह करके ओके ये, और इस तरह से अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा तो वो बिल्कुल गलत है। आपकी एक बॉक्स में एक ही लाइन आ सकती है। ठीक है, इफ आई मेक दिस बॉक्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिस बॉक्स विल बी completely incorrect. Why? Because it's rule number 1 that one line, one box, two lines, two box, four lines, four box. So keep that in mind. Moving on to the next rule, that is the accuracy of the full frame area requires that your line should be at a distance of 3 pixels from the text. इसमें बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए। 3 पिक्सल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये अभी मैंने जूम इन किया है पिक्चर को और मैंने डॉट डालना है, तो मेरी ये जो ये आप मेरे कर्सर पे दो बॉक्सेस बने हुए देख रहे हैं, ये वाले दो बॉक्सेस, ये एक बॉक्स एक पिक्सल शो कर रहा है। दिस वन बॉक्स इज शोइंग 1 पिक्सल। Okay, so if I have to add the dot, I have to be sure it's 3 pixels away. So 1 2 and 3, I can put the dot over here. And again, making the box is very simple. You have to select polygon. आपने polygon select करके box बनाना है, आप rectangle नहीं select कर सकते, या ये quadrature नहीं select कर सकते। आपने polygon select करना है और आपने dot frame बनाना है, dot full frame। कि आपने, और डॉट कैसे है, जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक आप करते हैं आपका डॉट डल जाता है, फिर नेक्स्ट क्लिक करें, टेक्स्ट के साथ साथ इसको लेके चले, और साथ साथ लेके चलते चलते आपने बॉक्स वहां खत्म करना है जहां आपकी लाइन खत्म हो रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं टेक्स्ट को काटे बगैर डॉट डालता हूँ तो ये बहुत दूर चला जाएगा। राइट, सो आई पुट अ डॉट हियर एंड नेक्स्ट डॉट विल बी हियर। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉक्स बन रहा है, कुछ इस तरह से।
स्पेस दबाते हैं तो आपका बॉक्स पूरा हो जाता है। ठीक है, ये मैंने स्पेस दबाया है, मेरा बॉक्स पूरा हो गया है। और मैंने एक चीज को इंश्योर करना है कि मेरे सारे पॉइंट्स प्रॉपर हों। ठीक है, अब ये स्पेनिश हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है तो मैं स्पेनिश हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपका सेकंड बॉक्स कहता है कि टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट लिखें। आपने टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, एक वर्ड आपका जो है वो बीच में क्लियर नहीं है। ई है, ए है, ओ है, क्या है ये? आई कांट अंडरस्टैंड इट। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ERR। ये अगेन नेक्स्ट वर्ड नहीं अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, स्पेस दिया। COLOCAR, होपफुली यही होगा। अच्छा, गेस व्हाट गाइस, देर आर फ्यू मोर ब्यूटीफुल ऑप्शंस। आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। Like this, you can adjust the brightness, you can adjust the contrast। और उसके बाद आप तब भी क्लियर नहीं हो रहा तो देन ऑब्वियसली यू यूज ERR फॉर द अनक्लियर वर्ड। ठीक है, अभी के लिए ये सिर्फ एक एग्जांपल बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको एक चीज और दिखानी है, वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये साथ साथ आ रहा है टेक्स्ट के। इट्स राइट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट, बट हेयर यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज गैप। It should not be like this. So what I'm doing is I'll put a point over here. Yeah, select it. I'll select edit. I'll select the box. I'll put a point over here. Yeah, this point is needed. This point will go here. This point will go here, like this. Now you can see the whole line is close to the text. I can put a line, like I can bring this dot over here, and I can bring this dot over here, like this. Now it is close to the text. तो बेसिकली आप लोगों ने क्या चीज फॉलो करनी है, क्या चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी लाइन जो है वो टेक्स्ट को कट ना करे, और आपकी लाइन जो है वो टेक्स्ट से बहुत दूर ना हो, टेक्स्ट के साथ साथ चले। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं डालने होते। कि अगर मैं लेट से ये वाला ये वाली लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि ओके, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अगर मैं इस पे लाइक लेट से यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और मैं इस तरह से इसको ट्रेसिंग कर रहा हूँ। दिस विल बी completely incorrect। अगर ये बॉक्स मैंने बनाया है लेट से, ठीक है, और मैं सेटिंग्स में जाके इसका देखना चाहता हूँ कि ये कितने नंबर्स हैं। तो आप देख लें कि ये बॉक्स जो कि एटलीस्ट 10 या 15 पॉइंट्स पे या मैक्सिमम 10 या 12 पॉइंट्स पे ये पूरा बॉक्स बन सकता था, आपने इसको 74 पॉइंट्स पे बनाया है। तो ये कंप्लीटली गलत होगा, इसको आप डिलीट कर दें। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि रिकॉर्ड ईच बॉक्स इन ऑर्डर ऑफ रीडिंग, मार्क इट क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है
तो आपने उसके लोअर राइट से बॉक्स बनाना शुरू करना है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है जो सब ने फॉलो करना है कि बॉक्स आपने लोअर राइट से बनाना शुरू करना है और वर्टिकल बॉक्स आपने लोअर लेफ्ट से बनाना शुरू करना है। हाउ? दिस इज हॉरिजॉन्टल बॉक्स, इसका लोअर राइट पॉइंट बनेगा ये वाला, तो दिस शुड बी माय फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से फिर मैं लाइन आगे लेके जाऊंगा जहां तक वो स्ट्रेट रहे और टेक्स्ट को कट ना करे। फिर मैं एक पॉइंट यहाँ डाल दूंगा, एक पॉइंट यहाँ डाल के नाउ आपका जो बॉक्स है वो कुछ आपका बॉक्स कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन ये पॉइंट आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है कि हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लोअर राइट, वर्टिकल टेक्स्ट लोअर लेफ्ट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? लोअर राइट और लोअर लेफ्ट, इससे हट के आप बॉक्स नहीं बना सकते। ओके, उसके बाद एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट करते हैं, स्पेनिश हॉरिजॉन्टल है ये। टेक्स्ट लिख देते हैं जो भी लिखा हुआ है, QUESOYLAMANTACACU, आगे अनक्लियर है तो ERR कर दिया। और यहाँ पे आपने डालना होता है कि आपका जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट बाउंड्री पॉइंट वो क्या है, वो हमेशा आपका 1 होता है। ओके, टेक्स्ट में आपने लिख दिया जो भी लिखा हुआ है, लोएस्ट बाउंड्री पॉइंट आपका 1 है, इसको ओके कर दिया। इसको आपने साथ साथ अपने काम को सेव करते रहना है इस बटन से। ये बटन शो हो रहा है सबको? सेव, सब ने सेव करना है इस सेव बटन से। और इससे आप नेक्स्ट पिक्चर पे जा सकते हैं, इससे आप पिछली पिक्चर पे जा सकते हैं। सबमिट करने के लिए ये बटन होता है, लेकिन सबमिट आपने इस तरह से नहीं करना। आपने पहले सिर्फ अपना काम सेव करना होता है। सेव करके आप अपने मैनेजर को बताते हैं कि मैंने काम सेव कर लिया है, ताकि हम आपकी क्वालिटी चेक करें कि क्या आपने रूल्स फॉलो किए, प्रॉपरली काम करके सेव किया है। इफ यस, देन यू आर अलाउड टू सबमिट योर टास्क। ठीक है, तो इस तरह से ये सेव आपने लाजमी करना है। अगर आप सेव नहीं कर रहे, लाइट चली जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है, इंटरनेट फेल हो गया या आपका टैब बंद हो गया, आपका सारा काम वेस्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज सेव योर वर्क। ओके, अब गाइस, आई एम गोइंग टू I'm going to ask Hina or Rabia, one of you can share your screen and discuss the guidelines in detail. Likewise, you can show the platform, the points from the platform. Okay. Hina, Rabia, any one of you can share your screen. I'm going to stop share. Now you basically guys, हिना या रबिया में से एक आपको जो है वो डिटेल में सारे रूल्स, सारी गाइडलाइंस समझाएंगे। और जब आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट दिया जाएगा ताकि आप एक दफ़ा पढ़ लें और उसके फौरन बाद आप आईडी लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। ठीक है, सो इसी मीटिंग में आप लोग रहे, गाइडलाइंस ठीक तरह से समझें कि रूल्स कैसे फॉलो करने, और उसके बाद आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगे और थोड़ी देर के बाद आपको आईडीज प्रोवाइड करके काम स्टार्ट करवा दिया जाएगा। है ना? रबिया, एनी वन ऑफ यू कैन शेयर द स्क्रीन। No.
Yes, we can see your screen. Hello. Okay, so you can start explaining from. हिना Sorry. आप कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज आ रही है? Sorry, can you repeat? फिर मैं जहाँ से हमने खत्म से आप एक्सप्लेन ओके करना स्टार्ट कर. ओके ओके ठीक है. सो अस्सलाम वालेकुम गाइस फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैं आपको जो है वो एक सिनेरियो बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए. फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रेम्स जो हैं वो लाइन बाय लाइन ड्रॉ होंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना एक अकाउंट खोला हुआ है. ठीक है. ये अब ये देखिए. अब मेरे पास ये पिक्चर है, इसमें ये इटालियन लिखी हुई है. ओके. पहले तो मैं मेरा ये काम होता है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल विंडो शिफ्ट एस, इसका स्क्रीनशॉट लेके जस्ट वेट अ सेकंड. मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है. फिर मैं गूगल लेंस में जाती हूँ या गूगल इमेजेस खोल लिया. इमेजेस, गूगल इमेज को प्रेस करूंगी. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना सर्च बाय इमेज, इस पे क्लिक करना है आपने एंड यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट हियर. अब ये आपको सर्च का ऑप्शन भी दे रहा है, टेक्स्ट का भी, ट्रांसलेट का. हमें टेक्स्ट चाहिए. ये लोड कर. अब ये पिक्चर जो है ये हमें यहाँ शो हो गई है. अब मैंने टेक्स्ट लेना है. यहाँ से मैं टेक्स्ट उठाऊंगी, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट. अब यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगी. मैं एक दफ़ा ये भी नोट कर लूंगी कि ये जो है इटालियन में है कि नहीं. सो फॉर दैट मैंने ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा. ओपन इन ट्रांसलेटर. आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा नेट का मसला थोड़ा स्लो है इसी वजह से. ओके सर, यहाँ से चाइनीज ये तो सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया था यहाँ से. मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया. इटालियन, राइट. ये बता रहे हैं इटालियन में. कॉपी किया, इसको मैं जो हूँ यहाँ पे अपने स्टिकी नोट्स के अंदर सेव कर लेती हूँ. मैंने यहाँ पे अपनी पहले से ही सेव करके रखा हूँ. अब मैं अपने अकाउंट में जाऊँगी. अब यहाँ पे मैंने एक बनाया है, एक इसको मैं डिलीट करके फिर आपको इसमें
अब हमने इसमें जो है बॉक्स फ्रेम बनाना है। फ्रेम हम कहाँ से शुरू करेंगे? उन्होंने कहा था हॉरिजॉन्टल राइट से। ये हमारा हॉरिजॉन्टल राइट है। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले पॉलीगॉन को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ जस्ट वन क्लिक, एक ये मेक श्योर कि आपका जो है टेक्स्ट के साथ टच ना हो, और यहाँ पे ड्रैग करते गए, और दूसरा जो फ्रेम है उसके साथ भी टच नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोग इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। पहले इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनाना, तो मैं इसको सीधा ही लेके चली जाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ इसमें गलती थी। अच्छा, अब ये मैंने बॉक्स तो बना लिए। अब ये प्रॉब्लम है कि जब इसको मैं जूम करती हूँ ना, ये देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है। ये स्क्वायर, ये 1 मेगापिक्सल, ये 2 मेगापिक्सल, और ये 3 मेगापिक्सल, इसका मतलब है ये बहुत दूर है। तो इसको मैंने एडिट पे जाना है। फर्स्ट में आपकी, अच्छा, इस प्लेटफॉर्म में जब आप फ्रेम बनाते हैं उसके बाद कुछ ऑप्शन शो करता है। सबसे पहले वो क्या शो करेगा? इटालियन हॉरिजॉन्टल है, इटालियन वर्टिकल है, स्मीयर हॉरिजॉन्टल है, स्मीयर वर्टिकल है, चाइनीज इंग्लिश है, फजी फिनेटिक्स है, स्पेशल लैंग्वेज है, फार्मूला या मोर को हम लोग, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। बेसिकली इटालियन हॉरिजॉन्टल हमारी टारगेट लैंग्वेज है, और इटालियन वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल बॉक्स। तो हम लोग इसको इटालियन हॉरिजॉन्टल क्लिक करेंगे। जो सेकेंड चॉइस है, इसमें हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है। अब हम लोगों ने, मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ लिख दूंगी, ठीक है, तो ये इस टेक्स्ट को, इस चीज को हम लोगों ने इस बॉक्स में लिखना है। लोअर बाउंड्री हमें कैसे पता चलेगी? जहां से हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया होगा। कैन यू सी दिस, द वन, हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे 1, ओके। ये हमारा फ्रेम बन गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 मेगापिक्सल से बाहर है, तो ये फ्रेम खराब है। तो हमने इसको क्लिक किया, इसको हम लोग लेके गए एज क्लोज एज पॉसिबल, कि वो लाइन को टच ही ना करे और हमारा फ्रेम भी कंप्लीट हो जाए। अब इसको मैं ट्राई करती हूँ, मैं इस तरह लेके जाऊँ। इस चीज की समझ लग गई होगी आपको, है ना? सर ने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेक्स्ट का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि अब ये जो है वो एक लाइन में लिखे हुए हॉरिजॉन्टली। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टिकी नोट है, ठीक है? आपको मेरे स्टिकी नोट्स नजर आ रहे हैं? है ना? आप कंफर्म कर सकते हैं मेरे स्टिकी नोट्स नजर आ रहे हैं आपको? नो, कृपया नहीं नजर आ रहे। ओके, यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये अगर इस तरह लिखा होगा R A I A, दिस वन इज वर्टिकल बॉक्स। ओके, तो फिर वर्टिकल बॉक्स में हम लोग किस तरह बनाना शुरू करेंगे? इस कॉर्नर से लेके हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर राइट, फिर नीचे, और फिर
स्पेस बार दबाएंगे तो हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक थिंग थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, ये वर्टिकल बॉक्स का बताया इन्होंने, हमारा हॉरिजॉन्टल बॉक्स जो होगा वर्टिकल अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और फिर ओके। वेरी सॉरी अबाउट दिस, लैपटॉप में थोड़ा मसला है। अच्छा, अब ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी है कि हम लोगों ने कैसे जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स बनाने। अब इस एग्जांपल में देखिए, ये जो इमेज है, अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये वाला जो है, ये MURANO, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉक्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं रबिया को RAW, ये बिल्कुल साइड बाय साइड लिखे हुए हैं, मतलब राइट नेक्स्ट टू ईच अदर लिखे हुए हैं, तो हम लोगों ने उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल बॉक्स कंसीडर करना है। अगर ये ऐसे लिखे होते, जैसा मैंने अभी तो एग्जांपल दी थी, ये ऐसे RAWBIA, तो फिर ये वर्टिकल बॉक्स होता। ओके ना, अब हमारा उन्होंने कहा है कि मैंने आपको बता दिया लोअर बाउंड्री पॉइंट कौन सी होती है हमारी इस प्रोजेक्ट में। लोअर बाउंड्री पॉइंट हमेशा वो होगी जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो हमेशा 1 होगी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 हमारा लोअर बाउंड्री पॉइंट होगी। अब स्पेसिंग का प्रॉब्लम आ रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड बैक कैरेक्टर इन द सेम टेक्स्ट लाइन इज मोर देन 2 कैरेक्टर एंड द सेम शुड बी सेपरेटेड विद 4 एंड आफ्टर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा गैप है, तो हम लोग जो है वो फ्रेम अलग अलग बनाएंगे। अगर वो टेक्स्ट गैप जो होगा वो छोटा होगा तो हम लोग एक ही फ्रेम को बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने जो एक बनाया, ओके, और यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स का गैप है तो हम लोगों ने 2 अलग फ्रेम बनाने। अगर लेस देन 2 कैरेक्टर्स हैं तो हम लोग 1 फ्रेम ही कंसीडर करेंगे और उसको 1 फ्रेम ही बनाएंगे। Special symbols, all characters that are transcribed need to be framed. जो भी कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे उनको हम लोगों ने फ्रेम करना है। ओके, जो भी चीजें होंगी उन सबको फ्रेम करना है। अब उसमें भी थोड़ी सी ऑप्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी सिंबल्स, ये हमारी टारगेट लैंग्वेज है। अगर करेंसी सिंबल आ जाती है तो उसको हम लोगों ने टारगेट लैंग्वेज कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे यहाँ पे अगर अगर ये जो है सिर्फ 35 लिखा हुआ है, 35 यूरोज लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट कौन कौन से मौजूद हैं, ये लेवल के अंदर एट्रीब्यूट्स पड़े हैं। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, कौन कौन से, इटालियन हॉरिजॉन्टल, इटालियन वर्टिकल, सीनियर हॉरिजॉन्टल, सीनियर वर्टिकल, चाइनीज, चाइनीज इंग्लिश, फजी फोनेटिक्स और मल्टी पॉइंट। तो अब हमारे पास जब कोई भी करेंसी आएगी डॉलर्स में, डॉलर का साइन साथ आएगा, तो उसके लिए हम लोग अपनी टारगेट लैंग्वेज को चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पोर्तुगीज है, आप पोर्तुगीज यूज करेंगे, अगर इटालियन है इटालियन, स्पेनिश है तो स्पेनिश। अदरवाइज अगर सिर्फ 35 लिखा हुआ आता है, फॉर एग्जांपल 35 एक अलग कॉर्नर में कहीं लिखा हुआ है और उसका हमने फ्रेम बनाया, फिर हम लोग उसको चाइनीज इंग्लिश कंसिडर करेंगे क्योंकि वो हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है। 35 इज जस्ट अ नंबर, और जो नॉर्मल चीज है जो हर हर कंट्री में तकरीबन यही बोला जाता है, यही इसको इसी तरह लिखते हैं, तो उसको हम लोग चाइनीज इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, और जो टारगेट लैंग्वेज अगर डॉलर्स या फिर यूरो में आ रहा है तो फिर हम लोग उसको
अब उसको टारगेट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इटालियन हॉरिजॉन्टल या फिर पोर्टुगीज हॉरिजॉन्टल। ये करेंसी की बात है। और दूसरा ये अब यहाँ पे सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लस का साइन है, ठीक है। इसको हम लोगों ने फ्रेम बनाना है। इसका फ्रेम हम लोग बिल्कुल सिमिलर वैसे जैसा हम लोग टेक्स्ट का फ्रेम बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेम वैसे ही बनाएंगे। और फिर इसको हम लोग ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, हम लोग इसकी जगह सिर्फ एट्रीब्यूट चूज करेंगे चाइनीज इंग्लिश, और उसको हम लोग ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। और उसकी लोअर बाउंड्री 1 करके ओके प्रेस कर देंगे। ओके। और जिस तरह अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एरोज आ रहे हैं, ये वाला एरो, ये वाला, ये वाला, इसको हम सब ने जो है ना, इसको इसके फ्रेम बनाने हैं और इनको हम लोग लेबल नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इसको हम एरो का हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने फ्रेमिंग जरूर करनी है, हर चीज की फ्रेमिंग होगी। फ्रेम बना के उसको हम लोग चाइनीज इंग्लिश जो है वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट। इसी फिगर में यहाँ पे हमें उन्होंने एक दिया हुआ है, एक ये लोगो बना हुआ है स्मॉल आर, ठीक है। ये एक लोगो है, इसको भी ट्रांसक्राइब करना है। अब ये क्या है कि या तो हम लोग जो है वो इसको जो है वो इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा, अब क्या है कि अगर सिंबल जो है वो हमारे पास टेक्स्ट के साथ आ रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक सिंबल @ बना हुआ है और ये टेक्स्ट के साथ आ रहा है, हम लोगों ने सिंबल को एज इट इज लिखना है। अगर अलग कोई सिंबल आ रहा है फिर हम उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी टारगेट लैंग्वेज के साथ एक सिंबल आ रहा है तो हम लोग उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल पिक्चर बनी हुई है और पिक्चर में लिखा हुआ है आईडी लिखी हुई है, ये हमारी आईडी लिखी हुई है, ठीक है। और ये टारगेट लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल ये इटालियन में लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका फ्रेम बनाएंगे, राइट कॉर्नर से स्टार्ट करके यहाँ पे ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे। अब फ्रेम बनाने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे भी एज इट इज, जिस तरह ये लिखा हुआ है एज इट इज हमने वैसे ही लिखना है। रबिया @RASWY, ठीक है, हमने बिल्कुल एज इट इज लिखना है। अब तो इस मेन पॉइंट में क्या था कि अगर टेक्स्ट के साथ हमारे सिंबल्स आ रहे हैं तो उसको हम लोगों ने एज इट इज लिख देना है। फॉर एग्जांपल एरो आ रहा है, एरो बना लेना है। अब इसको अगर आपके पास आपके कीबोर्ड में मौजूद नहीं है, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने खोला, अब यहाँ से कोई सिंबल्स हैं, इनको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी हो जाएगा और वहाँ पे आप जाके पेस्ट कर सकते हैं आराम से अपने प्लेटफॉर्म में जाके। अच्छा, एक चीज मैंने जो आपको बताई कि सबसे पहले जो अगर इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, अगर इंग्लिश आ रही है किसी भी पिक्चर के अंदर, उसको हम लोग फ्रेम बनाएंगे लेकिन उसका हम लोग टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। फ्रेम बना के दैट्स इट, हम लोग उसको छोड़ देंगे। दूसरा, अगर हमारे पास इंग्लिश या फिर न्यूमेरिक टेक्स्ट किसी टारगेट लैंग्वेज के साथ आ रहा है तो हम लोग उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, उसको लिखेंगे जैसे वो लिखा हुआ है। अगर एक ही फ्रेम में आ रहा है तो हम लोग उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग अगर अकेला इंग्लिश का वर्ड कहीं पे फॉर एग्जांपल मेन्यू आ रहा है तो उसको हम लोग जो है वो उसका टेक्स्ट नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ एट्रीब्यूट हम लोग उसको चूज करेंगे चाइनीज इंग्लिश एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये 2000, ये चाइनीज उनकी टारगेट लैंग्वेज है तो उन्होंने इसको एक साथ ही फ्रेम किया, अलग फ्रेम नहीं करना, इसको एक साथ ही फ्रेम करना है। और जो है वो फिर इसको लिखना भी है। फॉर एग्जाम्पल अब जो भी चाइनीज में लिखा हुआ है चाइनीज में लिख के ये 2000 ऐसे ही लिखना है और साथ ये भी चीज़ ऐसे ही लिखनी है। तो जो टारगेट लैंग्वेज होगी अगर उसके साथ कोई टेक्स्ट आ रहा है तो हम लोगों ने सॉरी कोई नंबर आ रहा है हमने उसको लिखना है। अदरवाइज अगर कोई नंबर अलग कहीं लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर में कहीं भी
जहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, उसका अलग फ्रेम बना है, तो उसको हम लोगों ने ट्रांसक्राइब नहीं करना, उसको हम लोगों ने नहीं लिखना। फ्रेम बनाना है एंड दैट्स इट। और हम लोगों ने एट्रीब्यूट चूज करना है, चाइनीज इंग्लिश। इसमें भी यही बात की हुई है। अच्छा, टारगेट लैंग्वेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्शन, ये वैलिड बॉक्स होगा। अब क्या है कि हम लोग जब फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम तो बनेगा सबका, लेकिन जो टारगेट लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इस प्लेटफॉर्म में अभी मैं इटालियन पे काम कर रही हूँ, तो ये इटालियन लिखी हुई है, ठीक है, मैंने फ्रेम बनाया, इसको मैंने राइट क्लिक किया। अब मैंने क्या एट्रीब्यूट चूज किया हुआ है, इटालियन हॉरिजॉन्टल, बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रेम। मैंने इटालियन हॉरिजॉन्टल एट्रीब्यूट चूज किया, और मैंने जो भी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। डॉट आया है बीच में, फिर स्पेस आई है, फिर NEI लिखा हुआ है, मैंने एग्जैक्टली सेम लिख के ओके कर दी, ठीक है। तो हमारा फ्रेम कंप्लीट हो गया। वर्टिकल में भी यही चीज होगी, ये हमारा वैलिड बॉक्स होगा। अब नेक्स्ट थिंग, अगर जिस तरह सर ने बताया, सर समझ ने बताया जिस तरह कि अगर कोई करेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टारगेट लैंग्वेज लिखी हुई है और बीच में हमें कुछ करेक्टर नजर नहीं आ रहा, तो उसकी जगह हम लोग जो है वो ERR यूज कर सकते हैं। कुछ भी लिखा हुआ है, टारगेट लैंग्वेज लिखी हुई है, एक वर्ड समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, उसकी जगह ERR लिखेंगे, आगे स्टार्ट कर देंगे, और ये चीज खत्म हो जाएगी। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसकी जगह हम लोग ERR यूज कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल लेंस जो है वो बहुत अच्छा कॉपी कर लेता है, वो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब कभी कभार जिस तरह की पहली पिक्चर आई थी, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे स्मेयर हॉरिजॉन्टल। अब ये हमारे पास एक, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये S कटा हुआ है, इसका मतलब स्मेयर हॉरिजॉन्टल है। अब मैंने फ्रेम अभी वैसे ही बनाया हुआ है। अब यहाँ पे फ्रेमिंग करके क्या करूंगी, S कटा हुआ है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्या सेलेक्ट करूंगी, स्मेयर हॉरिजॉन्टल इटालियन। क्योंकि अगर कोई भी चीज कटी हुई होगी, उसको हम लोग स्मीयर हॉरिजॉन्टल जो है वो सेलेक्ट कर, स्मीयर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया, लेकिन मैंने टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कटा हुआ है, तो हमें नहीं पता कि अंदर क्या उन्होंने बात क्या की है, तो हम लोगों ने टेक्स्ट नहीं लिखना। अगर वर्ड कटा हुआ है एक फ्रेम में, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, एट्रीब्यूट चूज करके स्मीयर हॉरिजॉन्टल इटालियन, प्रेस ओके, और दैट्स इट। अब यहाँ पे ये फ्रेम बिल्कुल पूरा है, ठीक है, यहाँ से हर वर्ड क्लियर है, सब कुछ यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने ये सब कुछ जो है यहाँ पे लिखना है, और ओके प्रेस कर देना। यहाँ पे 3548, ऑल्दो कि 35 जो है नंबर है, लेकिन फिर भी ये हमारी टारगेट लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको 35 लिखूंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये S जो है सिर्फ S लिखा हुआ है, आगे उसका जो वर्ड है वो सम लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक पूरा वर्ड होगा ऑब्वियसली, तो S तो नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने इसको भी स्मीयर हॉरिजॉन्टल क्लिक किया, स्मीयर हॉरिजॉन्टल इटालियन, और इसका टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखा, प्रेस ओके। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत थोड़ी सी, एट्रीब्यूट बहुत थोड़े से हैं, और जो है वो आराम से समझ में आने वाला है। अगर वर्ड कटा होगा, अगर वर्ड पूरा नहीं होगा, हम लोग स्मीयर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, ये स्मीयर हॉरिजॉन्टल के केस में। अब यहाँ पे अब टेक्स्ट ब्लरी है। अब ब्लर इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब ब्लर इमेज के लिए भी अलग हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक इमेज है जिस तरह के पहले स्पेनिश में आया था, हमें कुछ समझ नहीं लग रही क्या लिखा हुआ है पूरे फ्रेम में, हम लोग सिंपली क्या सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट में जाके फजी फेनेटिक्स चूज करेंगे और ओके करते हैं। हमें नजर कुछ नहीं आ रहा, तो हम इसको टेक्स्ट में लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो स्मीयर और हॉरिजॉन्टल के केस में डिफरेंस क्या है कि स्मीयर हमारे पास अगर वर्ड क्लियर है,
हमारे पास फ्रेम क्लियर है लेकिन वो कटा हुआ है साइड से, वर्ड क्लियर नहीं है, तो उसमें हम स्मेयर यूज करेंगे। फजी फनाटिक्स में कब यूज करेंगे? अगर हमारे पास जो कुछ भी फ्रेम में जो भी टेक्स्ट है वो हमें नजर ही नहीं आ रहे, बहुत ब्लर है, जिस तरह के इस केस में नजर नहीं आ रही, ये वाले इस पिक्चर में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हम लोग इसको ब्लर फजी फनाटिक प्रेस करेंगे और हम लोगों ने उसको जो है वो उसकी लोअर बाउंड्री प्रेस करके ओके कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं कि ये भी उसमें ट्रंकेटेड के केस में आर हमारे पास कटा हुआ है, तो हम लोग इसमें स्मीयर यूज करेंगे। ये वर्ड कटा हुआ है, इसका फ्रेम अब देखिए नीचे, बिल्कुल नीचे बना हुआ है, ये हमारे पास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें भी हम फ्रेम बनाएंगे और इसको हम लोग स्मीयर यूज करेंगे, क्योंकि हमें कुछ वर्ड क्लियर है लेकिन कटे हुए हैं, तो हम लोग इसको फ्रेम बना के स्मीयर यूज कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या आता है, चाइनीज इंग्लिश हॉरिजॉन्टल। अब हमारे पास जो टारगेट लैंग्वेज है वो इटालियन है, पोर्तुगीज है और स्पेनिश है। चाइनीज और इंग्लिश जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिखा हुआ आ जाता है, कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, हम लोगों ने इसको बॉक्स बनाना है, इसका बॉक्स बनाएंगे और इसको हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे चाइनीज इंग्लिश। यहाँ पे जाके ये एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे जाके हम लोगों ने इसको प्रेस करना है, ये चाइनीज इंग्लिश ये प्रेस करनी है। अगर वो बॉक्स वर्टिकल में होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा, फिर वर्टिकल प्रेस करेंगे, अदरवाइज चाइनीज इंग्लिश हॉरिजॉन्टल। और क्या चीज है कि, अच्छा, ये भी वही चीज है, अगर क्लियर नहीं है वर्ड तो हमें उसको ट्रांसलेट करने की नहीं जरूरत, स्मीयर हम लोग यूज करेंगे। और अगर वर्ड कटा हुआ है तो हम लोग स्मीयर यूज करेंगे, अगर टेक्स्ट ब्लर है तो फिर हम लोग फजी फिनेटिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे अब इसका टेक्स्ट बिल्कुल ब्लर है, कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्होंने फ्रेम बनाया है और इसको हम लोग क्या एट्रीब्यूट करेंगे, फजी फिनेटिक्स। अच्छा, कुछ स्पेशल लैंग्वेज होती हैं उनके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, उसको हम लोगों ने बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसके हम लोग जो है वो इनवैलिड बॉक्स करा देंगे सबको पूरा कर। अगर कोई लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और इटालियन, इंग्लिश और चाइनीज है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल लैंग्वेज चूज करेंगे एट्रीब्यूट को। अगर फार्मूला कोई आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर ये फार्मूला आ जाता है उसके लिए हम लोग फार्मूला का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अगर हमारे पास मल्टी पॉइंट का यूज करेंगे, अगर हमारे पास कोई डॉटेड लाइंस आ जाती है मोर देन 6, ठीक है, इस तरह की केस में ये लाइंस आ रही हैं, अब ये लाइन को हम लोगों ने फ्रेम करना है। अब फ्रेम करके इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टी पॉइंट का एट्रीब्यूट चूज करेंगे और हम लोग उसको लोअर बाउंड्री वन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर कोई लाइन आ जाती थी, तो मैंने उसका फ्रेम बनाया और फिर मैंने ये मोर की जो ऑप्शन है ना, ये मोर, एक्चुअल में ये ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने मोर इज एक्चुअली मल्टी पॉइंट। तो हम लोगों ने अगर डॉटेड लाइंस आ रही हैं या फिर हमारे पास स्टैरिक्स आ रहे हैं एक लाइन में, तो हम लोग उसमें ये ऑप्शन चूज करेंगे मोर का, विच इज एक्चुअली मल्टी पॉइंट ऑप्शन। तो हम लोग मोर के ऑप्शन यूज करेंगे अगर डॉटेड लाइंस और स्टैरिक्स आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई फार्मूला आ रहा है तो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। अगर कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो स्पेशल लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर फजी फनेटिक, अगर कोई चीज ब्लर है, कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही, सही तरह क्लियर नहीं है, तो फजी फनेटिक यूज करेंगे। अगर इंग्लिश और चाइनीज लिखी हुई है तो उसके हिसाब से कि और हॉरिजॉन्टल बॉक्स है या वर्टिकल बॉक्स है, तो हम लोग इन दोनों में से कोई एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। अगर इस तरह अगर कोई वर्ड कट हो रहा है या फिर कोई मेन्यू में यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस के बाद भी कोई चीज लिखी हुई है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, सिर्फ सिंपल एस लिखा हुआ है, तो ये वर्ड कट हो रहा है, मतलब ये पूरा वर्ड नहीं है, तो इसमें भी हम लोग स्मीयर हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। और अगर टारगेट लैंग्वेज है तो टारगेट लैंग्वेज यूज करेंगे। अच्छा,
ये भी उन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर यहाँ पे ये इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक लाइन में एक बॉक्स होना चाहिए, तो एक बॉक्स बनाया है, ये दूसरा बॉक्स है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 03 लिखा हुआ है और साथ में टारगेट लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज के साथ हमारा टेक्स्ट आ रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज अगर सिर्फ 03 का फ्रेम होता तो हम लोग 03 को नहीं लिखना था, सिर्फ चाइनीज इंग्लिश सेलेक्ट करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टैरिक्स जो है वो एक, ये दो, एक दो, अब ये गैप है बहुत ज्यादा। अगर मोर देन 6 स्टैरिक्स आ रहे हैं तो फिर हम लोग फ्रेमिंग करेंगे और फिर मल्टी पॉइंट का एट्रीब्यूट चूज करेंगे। अदरवाइज अगर एक एक स्टैरिक आ रहा है तो फिर जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी आ रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट भी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने बुलेट पॉइंट को भी अपने टेक्स्ट के अंदर शामिल करना। अगर ये खाली एक डॉट डॉट एक बुलेट पॉइंट अकेला यहाँ पड़ा होता, यहाँ पे बना हुआ था, तो फिर हम लोग उसको फ्रेमिंग नहीं करते। लेकिन अगर ये टेक्स्ट के साथ आ रहा है फिर हम लोग इसको टेक्स्ट के साथ ही इंक्लूड करेंगे। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, तो मैंने पहले की है। अच्छा, अब अंडरस्कोर, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए अंडरस्कोर। अगर अंडरस्कोर वैसे तो एक सिंबल है, लेकिन हम यहाँ पे इधर क्या कंसीडर करेंगे, अगर हमारे पास टारगेट लैंग्वेज के साथ अंडरस्कोर आता है तब हम लोग उसको लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे और उसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज ही सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपल यहाँ पे एक अंडरस्कोर लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पे सिंपल एक अंडरस्कोर लिखा हुआ आ रहा है तो फिर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग फ्रेम में नहीं लाएंगे। लेकिन अगर टारगेट लैंग्वेज के साथ एक आ रहा है अंडरस्कोर, हम लोग इसको टेक्स्ट के साथ शामिल करेंगे। अगर यहाँ इसके राइट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे विद द टारगेट लैंग्वेज, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं करेंगे। अंडरस्कोर का एक स्पेशल वो है, तो इसलिए हम लोग उसको अंदर अंदर करेंगे, उसके फ्रेम में लाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक एक इन्होंने कर्व सा बनाया हुआ है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये इसको देख के, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर साइड बाय साइड लिखा हुआ है तो फिर हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, लेकिन अगर वो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, फिर आर अलग लिखा हुआ है, नीचे ए अलग लिखा हुआ है, फिर बी अलग लिखा हुआ है, तो वो वर्टिकल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से राइट कॉर्नर से ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे जहां जहां मिनिमम पॉइंट्स बनाने और फ्रेम भी कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से नीचे लेके जाएंगे ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे न। अब यहाँ पे एक और चीज, अब द 100 लिखा हुआ है, इसके साथ एक बॉर्डर भी है, व्हाइट कलर का बॉर्डर भी है और एक शेडो भी है। बॉर्डर और शेडो को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना हम लोगों ने। सिर्फ अगर देखेंगे 100 में ये पिंक कलर का एक जो 100 लिखा हुआ है ना, सिर्फ कहाँ गया ये हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 100 इस तरह, और ये इस वाइट लाइन को और ये जो शेड पड़ रहा है, जो शेडो पड़ रहा है, इस चीज को हम लोगों ने इग्नोर करना है। हम लोगों ने सिंपल साथ साथ 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज जहाँ लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करनी है। चीजें बिल्कुल सिंपल है, जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, ज्यादा आराम से कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टैरिक लिखे हुए,
यहाँ पे स्टैटिक अब ज्यादा है, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाऊंगी और इसको मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, मल्टी पॉइंट। इसी तरह अंडरस्कोर है, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगी और इसको मल्टी पॉइंट। पॉइंट्स है उसको भी सिलेक्ट करना है और फिर मल्टी पॉइंट। यहाँ पे और ऑप्शन दी हुई है सारी, फ्रेम्स बने हुए हैं। अगर ज्यादा 2 कैरेक्टर से ज्यादा का गैप है तो हम लोग फ्रेम को सेपरेट कर लेंगे। अगर गैप ज्यादा नहीं है तो फिर हम लोग उसको एक ही फ्रेम में लेके आएंगे, जैसा ये बना हुआ है। अच्छा, अब कुछ समरी है। अगर नंबर और यूनिट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 kg है, 3 kg मिलीलीटर, किलोग्राम, ये सारी जो है जनरल यूनिट्स है। इनके लिए हम लोग चाइनीज इंग्लिश एट्रीब्यूट चूज करेंगे। अगर ग्राम, किलोग्राम ये चीजें लिखी हुई हैं तो उसके लिए चाइनीज इंग्लिश एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अगर कुछ हमारे पास लैंग्वेज होती है जो कि स्पेशल होती है, जिसमें कॉमास भी यूज हो जाते हैं, अगर आपको कहीं कॉमा नजर आया, 7 ग्राम भी नजर आया, तो उसके लिए हम लोग टारगेट लैंग्वेज यूज करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर जो है वो सिंपल होगा तो फिर हम लोग, अगर सिर्फ 3 किलोग्राम है या फिर पॉइंट में भी लिखा हुआ है तो वो चाइनीज इंग्लिश होगी। लेकिन अगर कॉमा आ गया बीच में, ये जिससे इसमें आया हुआ है, तो ये हमारे पास टारगेट लैंग्वेज आएगा। अब जैसे यहाँ पे 0.6 ग्राम है, ये इंग्लिश से भी आगे, फिर भी वो चाइनीज इंग्लिश एटीट्यूड सेलेक्ट करेंगे। Here we are. Here. Okay. ये जो समरी है ये बेसिकली नंबर्स और करेंसी की है। लाइक अगर एक नंबर्स है और उसके साथ कोई भी नंबर्स हैं और उनके साथ यूनिट है, लाइक केजी, किलोग्राम और इस तरह का कुछ है, लाइक एमजी, केजी, सो 3 kg, तो ये हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या एट्रीब्यूट चूज करना है, चाइनीज एंड इंग्लिश। ओके, और फिर क्या है कि आपका जो नेक्स्ट है वो है कि अगर अगर 3 kg सिंपल आ रहा है तो वो चाइनीज और इंग्लिश एट्रीब्यूट होगा, उसे हम ट्रांसक्राइब भी नहीं करेंगे। हम जस्ट वहां पर उसकी लोअर बाउंड्री लिखेंगे और वो होगी 1 एंड देन प्रेस ओके। ओके, बट अगर इस तरह से लिखा आ रहा है, लाइक 0, 6 ग्राम, इस तरह का कुछ अगर लिखा आ रहा है तो आप उसका प्रॉपर अच्छे से फ्रेम बनाओगे। उसके लिए टारगेट लैंग्वेज आपकी क्या है, लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन स्पेनिश देन योर टारगेट लैंग्वेज इज स्पेनिश, और अगर आप इटालियन पे वर्क कर रहे हो तो आपकी टारगेट लैंग्वेज इटालियन, एंड अगर पोर्चुगीज पे कर रहे हो तो पोर्चुगीज। ओके, और फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइक ओके, इफ 0,6 ग्राम ये टारगेट लैंग्वेज है, बट अगर पॉइंट्स में डेसिमल पॉइंट बीच में आ रहा है, लाइक 0.6 ग्राम, तो वो टारगेट लैंग्वेज नहीं है गाइस, वो है आपका चाइनीज एंड इंग्लिश एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली अगर आपका लाइक इस तरह से है 10,000%, लाइक दिस इज समथिंग टारगेट लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स, लाइक इस तरह से अगर लिखा आ रहा है कि नंबर है और साथ परसेंटेज का साइन भी है, तो वो टारगेट लैंग्वेज एट्रीब्यूट है। सिमिलरली अगर 1000 और साथ कॉलन, सेमी कॉलन आ रहा है या कॉलन आ रहा है, तो वो
अगर अगर नंबर के साथ परसेंटेज आ रहा है तो वो चाइनीज टारगेट लैंग्वेज है। अगर नंबर के साथ कोई कॉलन आ रहा है, सेमी कॉलन आ रहा है, तो वो इंग्लिश चाइनीज एट्रीब्यूट है। ओके, इसी तरह एज रबिया ऑलरेडी टोल्ड यू दैट करेंसी यूनिट, लाइक अगर यूरो है, डॉलर है, इस तरह की करेंसी यूनिट है, तो आप उसके लिए टारगेट लैंग्वेज एट्रीब्यूट ही सिलेक्ट करोगे और करेंसी को प्रॉपर आप लाइक उसको लिखोगे भी, उसको ट्रांसक्राइब भी करोगे और फिर आप प्रेस करोगे ओके। और अगर लाइक दिस इज लाइक सी 1000 यूरो, तो आप उसे टारगेट लैंग्वेज एट्रीब्यूट ही चूज करोगे। लाइक इसी तरह अगर बीच में डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है और करेंसी भी आ रही है, तो वो भी टारगेट लैंग्वेज एट्रीब्यूट है। The case of numbers plus other meaningless characters like non-sense characters like अगर सिर्फ वैसे ही लिखा हुआ है like 400 या सिंपल A लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए सिंपल चाइनीज एंड इंग्लिश एट्रीब्यूट सिलेक्ट करोगे। इसी तरह अगर like see like simple 400, you can choose Chinese and English attribute. Simple like 4.00B, 400B, 400C, like something written like that, then you have to choose Chinese and English attribute. Number only cases, okay. Number like अगर सिर्फ like number इस तरह लिखे हैं like 0,6,7, then उसके लिए target language attribute, that is Spanish attribute, Spanish horizontal और vertical. And then अगर सिंपल लिखा हुआ डेसिमल में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है like 0.3, 0.4, 0.6, then आप उसके लिए Chinese and English attribute select करोगे। Okay, here is the end of guidelines. So now अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट करके कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। Guys, if you हम लोगों को ग्रुप में मेंशन कर देंगे, लेकिन अभी इस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस।